Good morning, student of class 3. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, welcome back to your EVS class. Student, today date is 8 February 2021 and I am teaching you chapter number 15. And name of the chapter is Means of Communication. Means of communication. So now student, let's do little recapitulation what we have done in our previous video. So in the previous video, student, I explained you what is communication. When we speak or listen or read or write, this is the way how we communicate with the other person. Is it clear? When we speak or listen, read and write, in this manner we communicate with other person. So we can also say that when we share our thoughts and feelings with other person, that is their means of communication. So now after that I discuss with you what are the methods used by the people in the past time. That is drum beat. They use pigeon also for sending the letters. Smoke signal. Messengers are also sent to from one region, or you can say from one place to another. So these are the means of communication in the past time. So after that I explained you postal communication. So postal communication become very popular in the past time, and postal services are inland letters, postcard and envelopes. So in this way people can send letter to their friends and relatives. And the most important thing is that when you are sending the letter to someone, the address, you will write the address of that person. And in address, I already explained you that when you are writing the address of that person, then the most important thing is that we should mention the pin code number. Okay, pin code. This is a 6-digit number, and we will find a post office in all parts of the country, and by seeing this 6-digit number on the letter, we easily find that this pin code is of which particular place. जैसे वाराणसी में लेटर आया तो वाराणसी is a very big city, ना? But when you see the pin code, what is written on the letter, with the help of this pin code, we very easily find out that this pin code stands for which particular place. And after that बेटा आज मैं सिर्फ शॉर्टकट में बोल रहा हूँ. डिटेल में अगर आपको पोस्टल कम्युनिकेशन पूरा डिटेल आपको चाहिए होगा तो आप 6 की वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि ये मैं शॉर्टकट में सिर्फ रिवीजन करा रहा हूँ. ठीक है. अगर आप सोच रहे हो कि सर ने इतनी जल्दी ये कंप्लीट कर दिया, तो मैंने डिटेल में ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बताया है. जस्ट टुडे वी आर डूइंग रिकैपिचुलेशन व्हाट वी हैव डन इन द प्रीवियस वीडियो. नाउ आफ्टर दैट the mean of communication
personal mean of communication, that is a telephone, and telephone is the fastest mean of communication. You can talk to your friend or relative in any part of the country, and even you can talk to your friend and relative if he is living in abroad, means not in our country, in some other country. So telephone is the fastest mean of communication. ठीक है, आप जैसे नंबर डायल करते हो एंड it connect the call and you are able to talk to your friend or relatives, whether they are in any part of the country or whether they are living in other countries. Now after, and who invented the telephone? That is Alexander Graham Bell. Now see student, after telephone, the most popular mean of communication, that is mobile phone, because that is the mobile phone. See, now in present time, if we are talking about the present time, mobile phone become the most popular mean of communication. Okay, you can easily carry your mobile phone with you in your pocket. Okay, and it works with the help of the signals, and there are many facilities. Okay, and there are many facilities are in the mobile phone. You can talk to your friend or relative in any part of the country, or whether they are living in the other country. Same facility which is also available in telephone also, but you can carry your mobile phone with you at any place. Another thing is that there are lot of facilities are provided in the mobile phone. Okay, so in the mobile phone, let's discuss what are the, why we say in the present time mobile phone is the most popular means of communication. See, with the help of your mobile phone, even you can do a, first point is easy to carry, easy to carry. Second point is, I am writing all the points in shortcut, video calling. Okay, this facility is also available in the mobile. If you want to see the face of your friend or relative, you can do video calling. Okay, this facility is also available in the mobile. You can send messages, जिसको हम लोग SMS बोलते हैं. ठीक है, एंड देयर आर मेनी सॉफ्टवेयर इन द मोबाइल्स. ओके, यू कैन सेंड मैसेजेस, यू कैन डू वीडियो कॉलिंग. व्हाट्सअप, दिस इज आल्सो ए सॉफ्टवेयर विच इज इंस्टॉल्ड इन योर मोबाइल. व्हाट्सअप में आप मैसेज भी कर सकते हो. यू कैन डू वीडियो कॉलिंग ऑल्सो, एंड इवन यू रिकॉर्ड योर video and you can send to your friend or relative. Many facilities are available in the mobile. Okay, calculator, you can do calculation also with the help of your mobile. Calendar is also available in the mobile. You can check the dates or your important meeting events also you can check in your mobile. 6. So these are the many facilities which are present in the mobile. The most good facility, that is the Google Map. Okay,
So with the help of this software in the mobile, if you go to some new place, that place is new for you, and if you want to find your destination where you have to go, so with the help of this Google Map facility, very easily you are able to find the location or destination where you have to go. जिस जहां आपको जाना है, जिस वहाँ की लोकेशन पूरी मोबाइल आपको दे देगा, आपको कुछ नहीं करना है। गूगल मैप में आप उसमें करंट लोकेशन अपनी, या तो उसमें ऑप्शन में जाके लोकेशन ऑन कर दो अपनी, ठीक है। सो आपको कहीं भी जाना है, नए शहर में हो, तो आपकी करंट लोकेशन ले लेगा, फिर वो आपसे इट विल आस्क यू वेयर यू वांट टू गो। तो जहाँ आपको जाना है, यू राइट द नेम ऑफ दैट प्लेस, see the whole map will come, it will tell you the full detail, it will give you how much distance you will cover, that place is what is the distance of that place from the current location, and what are the important landmarks will come, and by road if you are moving, so how much distance you have to cover and how much time you will take by, if you are going by car or by your bike or by bus, all the full details with a landmarks। क्योंकि लैंडमार्क मैंने आप लोग को ऑलरेडी पहले बताया था। लैंडमार्क्स क्या होते हैं? लैंडमार्क्स आर द इंपॉर्टेंट प्लेसेस विच इज नोन बाय मोस्ट ऑफ द पीपल, एंड दीज लैंडमार्क हेल्प अस टू फाइंड द राइट लोकेशन ऑफ द प्लेस। ठीक है, लैंडमार्क क्या होते हैं? इंपॉर्टेंस बिल्डिंग्स हो सकती हैं, ठीक है। सो ये क्या कहती हैं, जिसको मैक्सिमम लोग जानते हैं। सो दीज लैंडमार्क्स हेल्प अस टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द प्लेस। सो दिस इज अ वेरी गुड फैसिलिटी विच इज अवेलेबल इन योर मोबाइल, दैट इज अ गूगल मैप, एंड फॉर द स्टडी पर्पस आल्सो lot of facilities are given in your mobile. There are many in YouTube. If you want to study any topic, you can write the name of that topic in the YouTube and full detail of that will come. So in this manner mobile is very helpful for us, and even student at the time of COVID-19 the school is closed, so with the help of your mobile phones your teachers are teaching you daily, you are watching the videos made by your teachers, and you maximum student they are attending online classes also with the help of a mobile, and how the mobile work with the internet, ठीक है। so for all these facility you need internet connection in your mobile, and for example student, if you want, see if you are traveling, so because mobile you can easily carry mobile with you, okay, lot of facilities are in the mobile. If you want to watch the movies, you can watch the movies also in the mobile, okay, live matches of cricket, football and other games. If you want, if by chance you are traveling somewhere, सो आप अपने घर का टीवी तो उठा के संग नहीं ना ले जा सकते हो, ठीक है, क्योंकि लेकिन आप अपने संग मोबाइल ले जा सकते हो। तो आप ऑल द लाइव मैचेस यू कैन वॉच विद द हेल्प ऑफ योर मोबाइल्स, ठीक है। सो देयर आर मेनी फैसिलिटीज विच आर गिवन इन द मोबाइल्स। आप अपने फ्रेंड्स को पिक्चर मैसेजेस भी भेज सकते हो, ठीक है। with the help of a mobile you can do the recording also। जैसे हम लोग देखो बेटा डेली रिकॉर्डिंग करके ना वीडियोस बनाते हैं, मोबाइल से वीडियो को रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसके बाद यूट्यूब के चैनल में अपलोड कर देते हैं, एंड यू आप फिर उससे वहाँ से वॉच कर लेते हो चैनल पे जाके। सो वी आर आल्सो दिस टाइम कोविड टाइम, स्कूल इज क्लोज, वी आर आल्सो यूजिंग आवर मोबाइल फोन्स फॉर मेकिंग ऑल दीज वीडियोज। So student, that is the reason we say that mobile is the most popular mean of communication in the present time,
There are lot of games which you can play in your mobile. Small kids, they are always, whenever they take the mobile of their parents, they start playing the game, because many games you can install from the Play Store also. ओके, सो मोबाइल में क्या है ना बेटा, जितने भी हमारे मीन ऑफ कम्युनिकेशन है उन सारों के फीचर्स सब के सब मोबाइल में अकेले ही प्रेजेंट हैं. जैसे टीवी, आप कोई भी चैनल्स प्रोग्राम सब देखते हो टीवी पे, इफ यू वांट टू वॉच दैट यू कैन वॉच इन योर मोबाइल आल्सो. ठीक है, पहले हम लोग बोलते थे ईमेल के लिए क्या होना चाहिए, ईमेल के लिए कंप्यूटर होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, और द पर्सन टू होम आई वांट टू सेंड द ईमेल, उसका ईमेल आईडी होनी चाहिए. आप सेम ये थिंग आप किससे कर सकते हो, अपने मोबाइल फोन से कर सकते हो. सो मोबाइल में सारी फैसिलिटीज हैं, बहुत जितने भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है सारे फीचर्स आपको मोबाइल में मिल जाएंगे. देखो जैसे पहले क्या रेडियोज हुआ करते थे, ठीक है, जब टीवी का इन्वेंशन नहीं हुआ था. आज देखो आपको अपने मोबाइल में आप रेडियो ऑन करो, FM 99 जितने भी चैनल हैं सारे आ जाएंगे, आप कोई भी म्यूजिक प्ले कर सकते हो. तो रेडियो फैसिलिटीज आल्सो अवेलेबल इन योर मोबाइल. दैट इज द रीजन मोबाइल इज द मोस्ट एडवांस्ड मीन ऑफ कम्युनिकेशन. इसीलिए मोबाइल को सबसे एडवांस मीन ऑफ कम्युनिकेशन बोला गया है. ठीक है, इफ यू आर गोइंग टू द न्यू सिटी और न्यू प्लेस, ठीक है, आपको होटल चाहिए, रेस्टोरेंट चाहिए, इफ यू वांट टू बुक द कार, सो while sitting home you just type in your mobile and it will give you the list of all the hotels. Okay, so all the facilities are in your mobile, all the facility. and mobile, small kids क्या है, हर समय गेम्स के लिए उसमें परेशान रहते हैं. लेकिन बेटा अब ये तो आप पे डिपेंड करता है ना कि आप किस टेक्निक को कैसे यूज कर रहे हो. Mobile is very good for the study purpose also. Okay, mobile is very good for the study purpose also. If some topic you are unable to understand, आप वीडियोस देख सकते हो, उस टॉपिक का नाम डालोगे उससे रिलेटेड वीडियोस आएंगी, तो आप वैसे भी एजुकेशन पढ़ाई कर सकते हो. और इस समय स्कूल्स बंद हैं, आई होप कि बहुत से बच्चे ऐसा करते भी होंगे. ठीक है, क्योंकि स्कूल क्लोज हैं तो मैक्सिमम स्टडी आपकी मोबाइल्स पे ही चल रही है, लैपटॉप्स पे चल रही है, तो आई होप कि आप ऐसा करते भी होंगे. ठीक है, सो डैट इज द रीज़न बेटा, इसमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं डैट इज प्रेजेंट इन योर मोबाइल. ठीक है, एक छोटी सी रिकैप्चुलेशन ले लेते हैं. इजी टू कैरी है, नॉर्मल कॉलिंग भी कर सकते हो, वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हो. यू कैन टॉक to your friends or relative whether they are living in any part of the country or whether they are living in other countries. You can send messages, WhatsApp messages भी आप भेज सकते हो, WhatsApp calling भी आप कर सकते हो. Is it clear? ऑडियो वीडियो अपने रिकॉर्ड करके एज ए मैसेज भी सेंड कर सकते हो. सी ऑल द फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन द मोबाइल. कैलकुलेटर फैसिलिटीज आल्सो अवेलेबल इन द मोबाइल. विद द हेल्प ऑफ दिस you can do the calculation. Calendar is also in the mobile. Okay, you can note down the importance. बहुत से ऑफिस पर्पस में जो लोग जॉब करते हैं वो अपने इवेंट जो मीटिंग्स है ये सब शेड्यूल कर देते हैं और रिमाइंडर में आप डाल दो जिस डेट को वो मीटिंग होगी, मोबाइल आप रिमाइंडर में उस डेट में वो आपको रिमाइंडर भी करा देगा, रिमाइंड भी करा देगा. ठीक है, मैनी फैसिलिटीज आर अवेलेबल. गूगल मैप है, गूगल मैप का मैंने ऑलरेडी आपको बताया. ड्यू टू दिस फैसिलिटी इफ यू आर गोइंग टू न्यू प्लेस आल्सो, देन आल्सो वेरी इजली यू कैन गो टू योर डेस्टिनेशन विद द हेल्प ऑफ दिस फैसिलिटी. एंड अदर फैसिलिटीज भी हमने डिस्कस की. ठीक है, आप टीवी प्रोग्राम्स देख सकते हो, एजुकेशन रिलेटेड प्रोग्राम्स देख सकते हो, ईमेल सेंड कर सकते हो आप. ठीक है, अपनी वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो. ठीक है, ऑल दीज फैसिलिटीज आर available in your mobile. That is the reason student, mobile is the most advanced. Why we say that mobile is the most advanced mean of communication. Okay, now next, today mobile phone have become a very popular and communication has become very fast and easy. ठीक है,
वी कैन सेंड मैसेजेस थ्रू SMS. SMS की फुल फॉर्म है, SMS फुल फॉर्म इज शॉर्ट मैसेज सर्विस. शॉर्ट मैसेज सर्विस. ठीक है, SMS फुल फॉर्म इज शॉर्ट मैसेज सर्विसेज. अब देखो नेक्स्ट है, वी कैन सेंड एंड रिसीव मैसेजेस, पिक्चर एंड फोटोग्राफ इमीडिएटली यूजिंग द फैक्स मशीन के. और मोबाइल में अनदर क्या है, कैमरा फैसिलिटी है. ठीक है, आप वीडियो रिकॉर्डिंग भी ले सकते हो. अपने को कैमरा फैसिलिटीज इज आल्सो इन योर मोबाइल. ठीक है, आप अपनी फोटोज भी ले सकते हो, उसके बाद आप उसकी प्रिंट आउट ले लो. और बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मोबाइल में जो आप जूम करते हो, कभी कभी होता है ना बेटा, इफ यू गो टू द मेडिसिन शॉप, से उस मेडिसिन शॉप से अगर आप मेडिसिन लेते हो ना, इफ द थिंग्स आर रिटन वेरी स्मॉल, ठीक है, कोई थिंग बहुत स्मॉल लिखी हुई है और आप उसे ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हो, सो वेरी सिंपल, यू टेक आप उसकी फोटो खींच लीजिए. ठीक है, एंड आफ्टर दैट यू ओपन इट एंड जस्ट जूम इट. जूम करोगे पूरे क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज रिटन. आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसको जूम करो, सो ऑल यू आर वेरी इजली एबल टू रीड द स्मॉल थिंग्स. ठीक है, जो ऐसी चीजें जो हमें बिल्कुल क्लियर नहीं दिखती हैं, आप उसकी स्क्रीनशॉट लेने के बाद जूम से उसे बड़ा कर, क्योंकि मैग्नीफाई ग्लास क्या करता है, यही करता है. अभी आप क्लास 5 में पढ़ोगे व्हाट इज द रोल ऑफ ए मैग्नीफाई ग्लास, व्हाट आर द यूजेस ऑफ मैग्नीफाई ग्लास. दोज थिंग्स विच आर वेरी स्मॉल, उस इमेज को वो क्या कर देता है, बड़ा कर देता है कि इजिली हम पढ़ लें. ठीक है, तो ये फैसिलिटी भी आपके मोबाइल में है. इफ द रिटन थिंग इज वेरी स्मॉल, यू जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट एंड आफ्टर दैट आप उसको जूम कर लो, then easily you are able to read it. That is the reason student we say mobile is the most advanced mean of communication. Now next है फैक्स मशीन के बारे में थोड़ी सी बात की है, इसका भी देख लेते हैं. फैक्स मशीन. So mostly fax machines, they are connected to the phone lines, or mostly fax machines are used to send a written and type messages. ठीक है, ये लैंडलाइन से, टेलीफोन लाइन से कनेक्टेड रहती हैं फैक्स मशीन. और मोस्टली आपको फैक्स मशीन कहाँ देखने को मिलेगी बेटा, ऑफिसेस में. ऑफिसेस में, ठीक है, मोस्टली आपको ऑफिसेस में फैक्स मशीन देखने को मिलेगी. इसके लिए ये फोन लाइन से कनेक्टेड रहती हैं. ठीक है, कोई भी मान लो आपको किसी को फैक्स करना है तो आपको उसको रिंग करना पड़ेगा, और जिसको आपको सेंड करना है मैसेज, सबसे इंपॉर्टेंट है उसके फैक्स मशीन में भी पेज होना चाहिए, पेपर, A4 साइज का पेपर. ठीक है, और आपकी फैक्स मशीन में भी पेपर होना चाहिए. ठीक है, जो भी मैसेज आप सेंड करोगे, या वो बाई हैंड रिटन होगा या वेदर इट इज अ प्रिंटेड फॉर्म. ठीक है, आप अपने फैक्स मशीन, आप इधर से फैक्स करोगे, जिस पर्सन को आप फैक्स कर रहे हो उसके मशीन में भी पेपर होना चाहिए. आप जो भी प्रिंटेड मैसेज रिटर्न फॉर्म में और इन द फॉर्म ऑफ ए प्रिंटेड फॉर्म में, जो भी रिटर्न फॉर्म में हैंड रिटन होगा या प्रिंटेड फॉर्म होगा, दैट मैसेज सेंड टू द फैक्स मशीन जिसको आप भेजना चाहते हो, क्योंकि वहाँ भी एक पेज लगा होगा, सेम वही मैसेज वहाँ प्रिंट आउट हो जाएगा. तो स्पेशली फैक्स मशीन्स को सबसे ज़्यादा इसकी यूज़ ऑफिसेस में होती है. ठीक है, फिर उसके बाद आ जाओ, उसके बाद हमने डिस्कस करेंगे इंटरनेट. ठीक है, वी कैन कम्युनिकेट विद पीपल एनीवेयर इन द वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. ठीक है, सो वी कैन कम्युनिकेट. ठीक है, कम्युनिकेट वर्ड मीनिंग आप सबको क्लियर हो गया, जिस ढंग से हम एक दूसरे के टच में रहते हैं. ठीक है, तो
इंटरनेट के थ्रू आप यू कैन कम्युनिकेट विद पीपल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अब देखो व्हाट इज अ इंटरनेट। अब इंटरनेट है क्या ये समझो। इंटरनेट इट इज ए network, it is a network that links computers, it is a network that links computer all over the world through all over the world with the help of telephone lines, and satellites। अब देखो इट इज अ नेटवर्क दैट लिंक्स कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ ए टेलीफोन लाइन्स एंड सैटेलाइट्स। ठीक है, ये सैटेलाइट्स भी क्या है बेटा, मैन मेड है। ठीक है, हम ही लोग नीचे मैन मेड है, हमने ही बना के इनको ऊपर भेजा है सैटेलाइट के थ्रू। जैसे आज देखो घर बैठे फॉरेन में कहीं भी मान लो क्रिकेट का मैच हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, इंग्लैंड में हो रहा है, या वेस्ट इंडीज में हो रहा है। ठीक है, सो इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, या साउथ अफ्रीका में हो रहा है मैच, अगर एनी पार्ट ऑफ द कंट्री कोई भी मैच होता है, हम लोग सारी चीज़ें लाइव देखते हैं, लाइव मैच आप देख सकते हो। सो दिस इज थ्रू द इंटरनेट सर्विस। ठीक है, सिग्नल्स के थ्रू जो सैटेलाइट्स हमने भेजे हुए हैं, इन सिग्नल्स के थ्रू हम लोग सारे प्रोग्राम लाइव एज ए लाइव टेलीकास्ट देखते हैं। ठीक है, सो अब थिंग्स क्या है, नाउ we also keep in touch with others using special websites called social network. We can send emails also through it. अब देखो अभी जस्ट मैंने पहले भी बताया था, आप अपने मोबाइल से you can send the email also, you can send email through computer also, you can say send emails through tablets also and laptops also। ठीक है, क्योंकि ये सारी सर्विसेज क्या है, इंटरनेट से कनेक्टेड होती हैं, एंड थ्रू दिस यू कैन सेंड ईमेल in any part of the country or in the other country also to your friend relatives, और अगर हो सकता है जॉब आप कर रहे हो, so at that purpose also। ठीक है, अब सोशल मीडिया जैसे देखो फेसबुक है, बहुत से लोग जुड़े रहते हैं, सब एक दूसरे को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। फेसबुक आप लोग ने भी देखी होगी अपने क्या कहते हैं मोबाइल फोन्स में। व्हाट्सअप है, ठीक है, और सो ऑल द थिंग्स मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस हमने जो भी ये डिस्कस किए, जैसे आपका पोस्टल कम्युनिकेशन हमने डिस्कस किया, आफ्टर पोस्टल कम्युनिकेशन हमने डिस्कस किया, फिर आए टेलीफोन्स हैं। ठीक है, पोस्टल कम्युनिकेशन सर्विसेज में इनलैंड लेटर्स आ गए, पोस्ट कार्ड्स आ गए, एंड एनवलप्स आ गए। फिर आफ्टर दैट टेलीफोन है, मोबाइल फ़ोन है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, फैक्स मशीन है। ठीक है, ऑल दीज आर पर्सनल मीन ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, ये जितने भी मीन ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, क्योंकि ये सारे हमें हेल्प करते हैं एक दूसरे की टच में रहने से। ठीक है, अगर मान लो किसी फ्रेंड से आपको बात करनी है जो आपसे बहुत दूर है, तो आपने मोबाइल करके बात कर ली। सो दीज मीन ऑफ कम्युनिकेशन हेल्प अस टू टच विद अदर पीपल्स वेदर दे आर इन द कंट्री और वेदर दे आर इन अनदर कंट्री। तो ये जितनी भी डिस्कस की हमने बेटा पर्सनल मीन ऑफ कम्युनिकेशन का पोर्शन हमने पूरा डिस्कस कर लिया इस चैप्टर में। ठीक है,
तो अब पर्सनल मीन ऑफ कम्युनिकेशन में अगर आपसे कोई पूछ सकता है तो आप तुरंत नाम बता सकते हो। पर्सनल मीन ऑफ कम्युनिकेशन लाइक लेटर्स हैं, पोस्ट कार्ड्स हैं, ठीक है, और एनवलप्स हैं, टेलीफोन है, मोबाइल फ़ोन है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ठीक है। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ personal mean of communication. So in the next video student, I will explain you about mass mean of communication. Okay, thank you.